Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Sequence and Series. Now, we'll understand the new concept, that is sigma notation. Yes, and in that we say it is called as what? Special series आ जाएगा. So यहाँ पे special series, sigma notation. So here we say the symbol the Greek letter as what? Summation. So we say the Greek letter sigma is read as summation. Summation sign yes, we have the sum as the sum is a1 plus a2 plus a3 dot an. So in this case, in general, we say it is read as summation of r equal to 1 to n ar, and this is equal to, we say, yes, it is read as sigma or summation a to n. So sigma a r, yes, where r is going from 1 to n आ जाएगा. So over here we say, for example, it is summation of r is equal to 1 to n आ जाएगा. yes, यहाँ पे I लिख देता हूँ. yes, this is x I आ जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा 1 x2 x3 dot xn आ जाएगा. yes, same way we have I is equal to 1 to n x. yes, in general अगर मैं यहाँ पे I, yes, ये n को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ as what 5, तो ये हो जाएगा x1 plus x2 plus dot x5. yes, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है summation, yes, I is equal to 3, say suppose 7 xi, तो ये हो जाएगा x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7. so ये कंडीशन हो गया. same way we also have over here, यहीं पे I is equal to 1 से लेके अगर n है xi स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट xn स्क्वायर. ये सेम वे I is equal to 1 से n xi yi आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस xn yn. so ये हो गया. now we'll understand special results. yes, few important note we will say. First one is sum of first n natural numbers. So it is read as summation of r equal to 1 से n is equal to, ये हो जाएगा n into n plus 1 divided by क्या आएगा 2. ये हो गया मेरा फर्स्ट रिजल्ट. we have second one as sum of squares of first n natural number.
सो ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा r स्क्वायर, दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6. We have the third result as sum of cubes of first n natural number. So that is summation of r is equal to 1 to n हो जाएगा, r cube हो जाएगा. This is n into n plus 1 divided by 2. Yes, इसका होल स्क्वायर. यस, मतलब यहां पे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 ये जो टर्म है इसका होल स्क्वायर. और वी कैन ऑल्सो से ये इंडिविजुअल अगर स्क्वायर गया तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, ये बन जाएगा n प्लस 1 द होल स्क्वायर, एंड ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4. नाउ 1 2 3, yes, this is very important condition. Based on this and there are few properties, उस पे based we have entire 4.5 exercise, and ये concept part एकदम दिमाग में बिठा देना है, then only you can solve this question. So right now we'll make a note of this part. Now we'll start with properties of sigma notation. So यहाँ पे we see the first one is, अगर मेरे पास है summation value of r is equal to 1 to n, एंड यहाँ पे लिखा है k t r. यस, तो ये k जो है वो कांस्टेंट है, तो वो k बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा, यहाँ पे tr आ जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे वेयर k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट. यस, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन. देन वी हैव सेकेंड वन एज समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आता है, इधर आ जाएगा ar प्लस br. यस, देन इन दैट केस समेशन इसको भी जाएगा, समेशन ये टर्म को भी जाएगा, सो दिस बिकम समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा ar प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n br हो जाएगा. यस, सो ये कंडीशन हो गया. देन वी हैव the third condition. Yes, third property says it is r is equal to 1 to n है और यहाँ पे 1 है, that is equal to, आंसर आ जाएगा n. इसका मीनिंग क्या होता है, समेशन है from r 1 to n, मतलब 1 plus 1 plus 1, ऐसा कितने टाइम, n number of times, जिसका मतलब ये होता है yes r equal to 1 to n, मतलब 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 n times. तो ऐसा उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे n लिखा. सो ये कंडीशन समझना था. एंड अगर यहाँ पे r इक्वल टू 1 to लेके n की जगह पे सपोज 5 है, तो 1 plus 1 plus 1 ऐसा कितनी बार आएगा, 5 बार. तो आंसर क्या आता है 5, मतलब जो n का वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगा. सो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी. एंड देन वी हैव द फोर्थ वन एज समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे k आ जाएगा. अगेन k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n. इधर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि k कांस्टेंट था, वो बाहर चला गया तो 1 आ जाएगा. सो इसका आंसर आ जाएगा k n, क्योंकि ये हमने अभी देखा व्हाट इज दिस, तो ये n है k n. और यहां पे मैं लिखूंगा वेयर k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट. यस, सो ये 4 प्रॉपर्टीज, एंड इसके पहले हमने 3 फॉर्मूलाज देखे थे. वो 3 फॉर्मूलाज यस वापिस से एक बार लिस्ट कर देता हूं. इट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. यस, ये एक केस है.
तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, यहां पे r आ जाएगा इज इक्वल टू n इंटू n+1 अपॉन 2. सेकेंड वन इज सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n natural number, हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इज इक्वल टू, हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय क्या आएगा 6, एंड उसके बाद आएगा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n natural number. सो ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा, ये r क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n इंटू n+1 अपॉन 2, यस, इसका होल स्क्वायर. और वी कैन से इंडिविजुअल स्क्वायर हो गया तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, n+1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा. यस, सो बेस्ड ऑन दिस थ्री कंडीशन, यस, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, ये तीन कंडीशन एंड ये चार प्रॉपर्टीज, इस पे बेस्ड पूरा एक्सरसाइज है. अगर हमें ये आता है वी कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइज पार्ट. सो नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. We'll start with the exercise 4.5. Question number 1. The question is, find the summation of r is equal to 1 to n r plus 1 into 2r minus 1. Yes, इसका वैल्यू ढूंढना है. So I will say it is summation of r is equal to 1 to n r plus 1 into 2r minus 1. Yes, this is equal to, ये हो जाएगा summation of r is equal to 1 से n आ जाएगा, ये हो जाएगा r plus 1 into 2r minus 1. नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा r summation of r equal to 1 to n आ जाएगा. Yes, ये ब्रैकेट सॉल्विंग होगा, r into 2r ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, r इंटू -1 ये हो जाएगा -r, प्लस 1 इंटू 2r ये हो जाएगा प्लस 2r, प्लस 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1. यहां पे आ जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा, ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस r प्लस 2r, तो ये हो जाएगा प्लस r -1. अभी समेशन हर टर्म को जाएगा, जैसे ही समेशन हर टर्म को जाएगा वी से समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n 1 आ जाएगा. यस, यहां पे मैं लिख सकता हूं, यस, दिस इज फॉर योर रेफरेंस दैट सिंस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n AR प्लस BR अगर होता है तो इसका आंसर हो जाता है समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n AR प्लस समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n BR. सो बेस्ड ऑन दिस वी से ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, 2 समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेके n आ जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r आ गया, माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n यहाँ पे 1 आ गया. यस, क्या किया है यहाँ पे, ये वो वाला प्रॉपर्टी यूज किया, दिस इज अगेन फॉर योर रेफरेंस कि r इक्वल टू 1 to n अगर k tr जैसा कुछ अगर है तो k बाहर आ जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 to n tr आ जाएगा. यस, somewhat this type of property it is. यस, ये हो जाएगा 2. अब डायरेक्ट समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, कैन आई से, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो उसका आंसर था n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6.
यस इधर आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि ये है मेरा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जैसा केस, एंड ये डायरेक्ट आंसर आ गया n। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दिस इज 1 एंड दिस इज 3 जा। सो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 माइनस n। सो ये आ गया। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, यस यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ दिस एज 6। यस इसको अगर 6 बना तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n ब्रैकेट n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3n ब्रैकेट n प्लस वन एंड ये हो जाएगा minus 6n. So now after this next step we can write over here as, yes ये सबके पास यहाँ पे n, ये टर्म के पास yes ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा और ये तीसरा, so we can take n common from this। ये हो जाएगा 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन आ जाएगा प्लस 3 ब्रैकेट n प्लस वन हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6। सो दिस इज n आ जाएगा, ये 2 हो गया, यस ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस ये ब्रैकेट में 3n प्लस 3 माइनस 6 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा n ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 3 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा n ब्रैकेट 4n स्क्वायर, 2n प्लस 4n 6n होता है, 6 प्लस 3 9n हो जाएगा, सो प्लस 9n आ जाएगा। 2 प्लस 3 5 माइनस 6 मतलब माइनस 1 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 6। यस सो विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। Now we'll start with the next question, that is question number 2. Find summation of r is equal to 1 to n bracket 3r square minus 2r plus 1। yes ये वैल्यू पूछा गया। so here ये हो जाएगा summation of r is equal to 1 to n 3r square minus 2r plus 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यस ये ब्रैकेट में तो ये टर्म जाएगा, ये भी एंड ये भी, समेशन इज ये टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, यस 3r स्क्वायर, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर निकाल दिया, r स्क्वायर आ जाएगा माइनस समेशन इसके साथ भी जाएगा, ये भी 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, इधर r आ जाएगा प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यस यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सिंस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा ar प्लस br इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n ar प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा br। यस ये कंडीशन समझ रहे। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट, अरे समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, मतलब ये हो गया मेरा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका मतलब है ये है मेरा नोट नंबर 2, तो n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या आएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस वन अपॉन 2। कैसे? क्योंकि ये है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r, इसका मतलब ये हो गया मेरा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वैल्यू, मतलब नोट नंबर 1।
एंड समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू n, इधर 1 है मतलब ये हो गया n. दिस इज माई प्रॉपर्टी नंबर 3. यू कैन राइट ओवर हियर इन द ब्रैकेट समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा. सो यहां पे दिस विल बिकम 3 1s are 3 2s are. यस, तो यहां पे अपॉन में 2 आ गया. ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आ गया डिवाइड बाई 2 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल होता है बट वापिस से हम एलसीएम लेने वाले हैं तो ये 2 को एज इट इज रहने दिया. यस, एज सच कैंसिल होता है बट मैंने एज इट इज रहने दिया क्योंकि इधर भी 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है. प्लस यहां पे खाली n है, सो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है. सो हियर वी कैन से yes, न्यूमरेटर पार्ट से we can write it as first term as it is, second term जो है वो भी as it is, third term जो है वो जाएगा 2n and whole divided by क्या लिखूंगा 2. अच्छा, इधर ये टर्म में से n कॉमन, इधर से इतने पार्ट में से n कॉमन और यहां से n कॉमन, तो n कॉमन आ गया. यस, ये अपॉन वाला 2 यहां पे लिख दिया तो अभी खाली बचे हुए टर्म्स लिखेंगे. सो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस इधर क्या बचेगा खाली 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 प्लस क्या बचेगा 2, क्योंकि n बाहर ले लिया यहां से और यहां से कॉमन और ये अपॉन वाला 2 यहां पे चला गया. सो ये हो गया n बाई 2 ब्रैकेट, यस ब्रैकेट सॉल्विंग, n इंटू 2n ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, n इंटू 1 ये हो जाएगा n, 1 इंटू 2n ये हो जाएगा 2n, 1 इंटू 1 इज 1 हो जाएगा. यस, ये एक ब्रैकेट में माइनस, यस ये 2 खाली 2 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा, माइनस साइन बाद में देंगे, पहले खाली ये टर्म को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2n प्लस 2 हो गया प्लस 2. अब यहां पे ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n ये हो जाएगा 3n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2 प्लस 2. So from this we can say ये n अपॉन 2 हो जाएगा. यस, यहाँ पे 2n स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 2 ये प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 3n माइनस 2n तो ये n हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा. यस, so with this question is done. We make a note of this part. Now we'll start with the next question, that is question number 3. Find summation of r is equal to 1 to n है, ये जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 r आ गया डिवाइडेड बाई r. सो यहां पे मुझे इतना समझ में आ रहा है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 r है, मतलब ये हो गया मेरा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जैसा, यहां पे n के जगह पे r के टर्म्स में है. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, मैं यहां पे लिखता हूं, वी नो दैट इफ वी हैव 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n, then the answer for that is n into n plus 1 upon 2. So यहाँ पे in this case it is 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 r है, तो ये हो जाएगा r into r plus 1 upon 2 आ जाएगा. Yes, so based on this now I can say now summation of r is equal to 1 to n आ जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus dot dot r divided by r is equal to summation of r is equal to 1 to n. yes, ये न्यूमरेटर पार्ट के लिए क्या टर्म आ जाएगा, तो ये आ जाएगा. सो ये हो जाएगा r into r plus 1 divided by 2 upon r. मतलब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर पार्ट है उसके लिए इतना टर्म आ गया एंड ये जो है वो डिनोमिनेटर पार्ट है. अच्छा, मतलब न्यूमरेटर में 2 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में भी 2 पार्ट बना देंगे बाय राइटिंग इट एज अपॉन पे 1. सो नाउ वी कैन से ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n
यस इधर ये वाले टर्म इसके साथ जाएंगे, सो r इंटू आर प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू आर आ जाएगा. सो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा. समेशन ऑफ क्या बचेगा, r प्लस 1 अपॉन 2. सो यहां से 1/2 बाहर चला जाएगा. समेशन ऑफ r प्लस 1 हो जाएगा. यस यहां पे मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू 1 से n आएगा, यहां पे भी r इज इक्वल टू 1 से n आ जाएगा. सो 1/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, r हो गया प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, ये 1 आ गया. यस सो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, r आ गया. इसका मतलब ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जैसा कहें नोट नंबर 1 है ये, तो इसका आंसर होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस इसका आंसर n आ जाएगा. यस सो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं इधर n है इधर n है तो वो कॉमन आ जाएगा. सो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1. यस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 आ गया. ये हो गया n/2, ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से n/2 हो गया, ये हो गया n प्लस 3 अपॉन 2. सो इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू n प्लस 3 डिवाइड बाई 4. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Let's start with the next question. That is question number 4. So यहाँ पे question is given as find summation of r is equal to 1 to n दिया है. Then it is 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 r क्यूब अपॉन r इंटू r प्लस 1 है. Yes, so here we again need to understand कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है, yes यहां पे मैं लिखता हूं we know that 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब अगर है, सो ये हो जाएगा मेरा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. यस एंड उसका आंसर होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 the whole square. Yes, that is equal to ये हो जाएगा n square into n plus 1 the whole square upon 2 का square 4. Yes, but यही चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ if it is 1 cube plus 2 cube plus dot 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 r cube है. Yes, so in this case we can say this is same as r square into r plus 1 the whole square upon 4. Yes, and then I can say now समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 r क्यूब अपॉन r इंटू r प्लस 1. यस तो समेशन ऑफ दिस वैल्यू एज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 r क्यूब. यस उसका आंसर ये रहा. सो डायरेक्ट समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n. यस न्यूमरेटर पार्ट में मैं लिख दूंगा डायरेक्टली ये वाला वैल्यू. सो ये हो जाएगा r स्क्वेयर इंटू r प्लस 1 द होल स्क्वेयर अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाई मतलब ये खाली न्यूमरेटर पार्ट इतने पोर्शन में मैंने ये वैल्यू लिखा. यस अब इसके जगह पे ये ही आएगा फिलहाल के लिए. यस न्यूमरेटर पार्ट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पार्ट में खाली न्यूमरेटर है, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 आ जाएगा. सो r इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा. ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू r प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4. यस ये डिवाइड को अगर इंटू बना दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1 हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस इधर से एक r गया, यहां से एक r गया, ये r प्लस 1 एक गया, r प्लस 1 एक गया.
1/4 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा, ये हो जाएगा, एक r बचा था और एक r प्लस 1 बचा है, सो यहाँ पे वी कैन से इट इज 1/4, यस ब्रैकेट आ जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा, r इंटू r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, r इंटू 1, ये r हो जाएगा, यस एंड यहाँ पे नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एज 1/4 आ जाएगा, यस ये हो गया मेरा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जिसका आंसर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस इसका आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं इधर भी n है इधर भी n है, बाहर n प्लस 1 बाहर, इधर 6 है इधर 2 है, तो यहाँ पे 1/4, इधर n ऑलरेडी दोनों जगह पे है तो कॉमन लिया, n प्लस 1 कॉमन है तो वो भी कॉमन लिया, एंड इधर 6 है और इधर 2 है तो इधर 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n प्लस 1/3 प्लस इसकी जगह पे ये सब कुछ चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा, सो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 8, यस इधर ये आ जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, यस एलसीएम लिया, सो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 2n प्लस 4 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 24, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं n इंटू n प्लस 1, यस इधर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 एंड ये हो गया 24, ये हो गया 1 सा, ये हो जाएगा 12 सा, सो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12। With this question is done. We make a note of this part. Now, based on this, the questions which we have done till now, so based on that, we have few miscellaneous questions, which is homework for you all. That is question number 10. It is find summation of r is equal to 1 to n, bracket 5r square plus 4r minus 3, bracket close. This is similar to 4.5 ka question number 2. So this was first question for homework. Second one is question number 11th of miscellaneous, that is homework. Find summation of r is equal to 1 to n, r into r minus 3 into r minus 2. Yes, this is second question which is there for homework. Yes, and this is somewhat similar to question number 1 of 4.5. So ये हो गया second question as homework, and then we have next question for homework, that is question number 12 of miscellaneous. Find summation of r is equal to 1 to n, 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 r square upon 2r plus 1. Yes, this is again we can say this is similar to question number 3 of 4.5. And then we have 13th question as homework, that is find summation of r is equal to 1 to n, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube dot 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 r cube upon r plus 1 the whole square. So this is similar to the fourth question of exercise 4.5. So these are the 4 questions for homework you need to do on the basis of what? The questions which we did till now. So please revise the concept and then solve the homework questions. That will help you to solve those questions. And with this we end the session over here. Thank you.